પિરાણા દરગાહને લઈને કાફી વિવાદ ચાલતો હતો. હવે લોકો જે છે શહીદ પરિવારના લોકો, તેમના વંશો જે કહેવાય છે, તેઓનું કહેવું એમ છે કે આજે જે નામકરણ કરવામાં આવ્યું છે તેને લઈને લોકો આમરણ ઉપવાસ ઉપર બેઠા છે. તો શું છે એની હકીકત, તે અમારા માધ્યમથી. એક તો દરગાહ છે ને અહીંયા મંદિર છે, અને મંદિરનો કોઈ અત્યારે કોઈ વિવાદ નથી. આમરણ ત્રણ ઉપવાસ ઉપર એ ઉતર્યા તો એ અમને પણ એ વિષય ખબર નથી. કોઈ વિષય અહીંયા તીર્થધામ પ્રેરણાપીઠ એમાં અત્યારે કોઈ અમારો એવો કોઈ વિષય ચાલી નથી રહ્યો. આખો મામલો કોર્ટમાં તો ચાલી જ રહ્યો છે. તો નામ બદલી કરવા માટેની કોઈ એવી પરવાનગી લેવામાં આવી છે કે ટ્રસ્ટી કે સંસ્થા તરફથી નામ બદલવા? ના, નામ કોઈ બદલ્યું જ નથી. નામ ક્યાં, એ તો સાહિત્યમાં નામ છે. હંસદેવજી મહારાજ વર્ષોથી અમારા પુરાણોની અંદર નામ છે, અન્ય ગ્રંથોની અંદર નામ છે, ને એ નામ રાખ્યું છે. એમાં કોઈ નામનો ચેન્જ અમે કંઈ કર્યો નથી. કોઈ નામનો ચેન્જ અમે નથી કર્યો. તીર્થધામ પ્રેરણાપીઠ કૃષ્ણ ભગવાન સ્થાપિત જગ્યા છે, હિન્દુઓના આસ્થાનું સ્થાન છે, સ્થાન છે, અને એ સ્થાનની અંદર જે ગ્રંથોમાં નામ છે એ નામ અમે રાખ્યું છે. કોઈ નામ અમે ફેરફાર કરેલો નથી. દરગાહ ઉપર જે મંદિર તમે કહો છો એ લોકો કહે છે દરગાહ છે, વિવાદ આ બેની વચ્ચે જ છે. મંદિરનું સ્થાન અલગ છે, દરગાહનું સ્થાન અલગ છે. દરગાહનું સ્થાન એની પેલી દિવાલની પેલી બાજુ આવ્યા છે, એ શું કરે છે અમને કંઈ ખબર નથી. મંદિરનું સ્થાનમાં અમે મંદિરની રીતે અમારે હિન્દુના આસ્થાનું સ્થાન છે, અને અમે અમારી રીતે વર્ક કરી રહ્યા છે. અમને કોઈ ખબર જ નથી. દરગાહના સ્થાનમાં કોઈ ફેરફાર? ના, અમે દરગાહનું કોઈ એના સ્થાનને અમે કોઈ અડ્યા નથી. દિવાલની પેલી બાજુ દરગાહ છે, અમે કશું જ અડ્યા નથી. અને આ બાજુ અમારું મંદિર છે, અને મંદિરની અંદર હિન્દુ શાસ્ત્રોક્ત પ્રમાણે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. તો ગુજરાત અને અમદાવાદની જનતાને તમે શું મેસેજ અમારા માધ્યમથી આપવા માંગો છો? તીર્થધામ પ્રેરણાપીઠ આવો. જે કલ્કી અવતાર 10મો અવતાર આવવાનો છે એનું આસ્થાનું એક સ્થાન છે, અને કરોડો લોકો બધા અહીંયા આગળ આવી રહ્યા છે. આપ પણ જોડાઓ, સહભાગી થાવ, તીર્થધામ પ્રેરણાપીઠની એક મુલાકાત લો. અને આ મામલો જે પૂરો કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે, શું આગળ જઈને એનામાં ન્યાય થઈ શકે છે તમારા તરફ કે એમની તરફ? તમને કંઈ જાણ હોય તેના વિશે કંઈ? નહીં, કોર્ટમાં અમે કોઈ કોર્ટમાં ગયા નથી. એ કોર્ટમાં ગયા છે તો અમને પછી એ કંઈ ખબર નથી. અને એ વિષય મામલો કોર્ટનો છે જ નહીં. અત્યારે કોઈ કોર્ટ નહીં, એનું કામ કરી રહ્યા છે, અને અમે અમારા તીર્થધામ પ્રેરણાપીઠના ટ્રસ્ટનું કામ કરી રહ્યા છીએ. તો બીજા સમાજના જે લોકો આસ્થા રાખતા હતા અહીંયા, એ લોકો પણ આવી શકે છે? જે દર્શન કે પ્રાર્થના કરવા આવતા હશે એ લોકો અત્યારે આવી શકે? હિન્દુઓનું 18 વર્ણ હિન્દુઓની છે, અને હિન્દુઓના 18 વર્ણને અમે આવકારીએ છીએ, અને 18 વર્ણ અહીંયા આગળ દર્શન કરવા માટે આવે છે. कोई बात नहीं, वो दे देंगे, ये यहाँ देंगे, दे देंगे, तो दूसरे भी है। शहबाज भाई के अलावा भी नीला अपने नजीब भाई नजीब चलिए, तो हमने जिस तरह से पिराना का विवाद आपको दिखाया कि महिलाएं किस तरह से प्रोटेस्ट में बैठी है, और एक हेल्दी प्रोटेस्ट चल रहा है अपने परिवार के संघर्ष को लेकर, और जो है हजरत इमाम साहब बाबा के नाम को जो है बदली कर दिया गया है उसको लेकर। हालांकि यहाँ के आगेवानों का कहना है कि ये कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, हमारा पारिवारिक विवाद है। तो इसको हम इस तरह से हेल्दी प्रोटेस्ट और हेल्दी जो एहतजाज करके उसको जो है सुलझाना चाहते हैं। सीधा हम यहाँ पर बात करेंगे जो आगेवान हैं उन्हीं से कि अब क्या कुछ हकीकत है, पिछले सालों जब कवरेज में आप तक समाचार की टीम पहुंची थी उसको लेकर अब तक जो है क्या अपडेट आया है, और कहां तक का आपको सरकार से न्याय मिला है, और आने वाले दिनों में कितनी उम्मीद है गवर्नमेंट से कि क्या न्याय मिलेगा? देखिए, मेरा नाम नकीब सैयद है, और हम जो हैं इमाम साहब बाबा इमामुद्दीन कुफरी शिकन रहमतुल्लाह अलैह के वंशजों में से, उनके ख़ानदान से हैं हम लोग, उनके डिसेंडेंट हैं। बात ये हुई कि आप लोग को पता ही होगा 1.5 साल पहले एक दीवाल का मुद्दा हुआ, तभी हम लोग ने एक मार्च निकाले थे, और हम लोग ने हिजरत कर हम लोग कलेक्टर ऑफिस हम रजूआत के लिए गए थे, और बीच में हमको डिटेन कर लिया गया था। अभी ये हुआ कि उस वक्त में SDM साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई,
जिसमें इमाम साहब बाबा रोजा संस्था ट्रस्ट के ट्रस्टीज़, जिसमें सतपंथीस और सैयद दोनों कम्युनिटी के। सैयद वो हैं जो इमाम साहब बाबा की औलाद, इमाम साहब बाबा के ख़ानदान से। सतपंथी वो है जो इमाम साहब बाबा को फॉलोअर्स हैं, जो इमाम साहब बाबा को मानते हैं। इमाम साहब बाबा रोजा संस्था ट्रस्ट में दोनों ट्रस्टीज़ हैं। अब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए थे, तो हम लोग ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया थी। तो वो पिटीशन को हमने विड्रॉ किया। क्यों किया कि एसडीएम साहब की अध्यक्षता में, उनकी मध्यस्थी के साथ में एक मीटिंग की गई, जिसमें एमओ में ये डिसाइड किया गया कि इमाम साहब बाबा की दरगाह का जो संकुल है उसमें कोई चेंजेस न करने में 17 मुद्दों का एक समाधान हुआ, जिसमें सैयद ट्रस्टीज़, सतपंथी ट्रस्टीज़ और दूसरे हमारे यहाँ के जो सादात आगेवान हैं उन लोगों की उनके साथ में एक समाधान किया गया। और उसके अंदर डिसाइड हुआ 17 मुद्दों के समाधान में कि तीसरा मुद्दा जिसका वो था कि भाई इमाम साहब बाबा के संकुल में कोई चेंजेस न करने में आए या कोई चिन्ह, धार्मिक चिन्ह न लगाने में आए। अब ये हुआ कि 3 दिन के पहले उन्होंने काफ़ी सारे चिन्ह लगाए, उसके लिए हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, लेकिन 3 दिन के पहले उन्होंने इमाम साहब बाबा का नाम चेंज कर हंस तेज महाराज रखा। और उसके बाद उन्होंने हंस तेज महाराज ज्योति मंदिर का बोर्ड जो इमाम साहब बाबा की दरगाह के ऊपर लगा दिया गया, जिसके फोटोग्राफ्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब वो लगाने के बाद बाकी के जो हिंदू भगवान के ड्यू रिस्पेक्ट हिंदू भगवान के फ़ोटो भी लगा दिए गए। तो हमने कलेक्टर साहब से भी एक इल्तिजा की, हमने अपील की, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। तो जब कलेक्टर एसडीएम साहब की अध्यक्षता में अगर एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो और फिर भी ये सतपंथी ट्रस्टीज़ वो चीज़ को मान न रखने में आए और हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम गांधी जी मार्ग पर हम लोग एक आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन के दौरान हमने कल कलेक्टर साहब और एसपी साहब को एप्लीकेशन दिया कि हम लोग इतने लोग आमनाद उपवास पर उतर रहे हैं, जब तक कि हमारी मांग, हमारी जो बात है वो सरकार तक ना पहुँचे और ये बोर्ड ना उतरे, तब तक हम ये हंगर स्ट्राइक जो है उसको चालू रखेंगे और बाकी के जो लोग हैं वो धरना करेंगे। तो पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि आप लोग कलेक्टर साहब के पास आवेदन पत्र देने के लिए जा रहे हैं, एसपी साहब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आप गांधीनगर गुजरात सीएम तक पहुंच सकते थे, जो अब तक वो कदम आपने नहीं उठाया। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे की कोई वजह? देखिए सर, इसके पीछे की कोई वजह नहीं है। हम लोग ने जहाँ तक सरकार तक बात पहुँचाने की ट्राई की हुई है, बट बात ये है कि जब सरकार तक हम लोग बात पहुँचा रहे तो वहाँ से ये आंसर आया कि ये भाई कोर्ट मैटर है, आप कोर्ट में जाओ। अब सर जब हम कोर्ट में जाते हैं, अब देखिए कोर्ट की एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसीजर होती है, उसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है। जब तक वो प्रोसेस तक हम पहुँचते हैं वहाँ तक ये लोग कुछ यहाँ के जो कुछ नया काम या नई कोई बात यहाँ पर वो लोग कर देते हैं। तो वो कोर्ट के प्रोसेस के अंदर जो टाइम लगा है उसमें उस वक्त का ये लोग दुरुपयोग करते हुए उसको ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। इसी वजह से हम लोग ने ये आंदोलन करने का डिसाइड किया। तो कब तक ये आंदोलन चलेगा और कितने लोग इसमें जुड़े और आसपास के गाँव के लोग भी जुड़ने वाले हैं इसमें? देखिए सर, इसमें अभी जो हैं 25 लोग हैं वो हंगर स्ट्राइक पे अमरनाथ उपवास पे उतर गए हैं, और बाकी के औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग लोग जो मर्द हजरात हैं वो सारे धरना करेंगे। तब तक करेंगे जब तक कि ये बोर्ड उतर नहीं जाते, जब तक हमारी मांग सरकार नहीं लेती तब तक उतरेंगे। आसपास के गांवों की बात करूं तो इमाम शाह बाबा के ख़ानदान जो है वो बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट और पेटला डिस्ट्रिक्ट में। जैसे बड़ौदा के पास टोटल हमारे 17 गांव हैं जहाँ के सादात हैं, जैसे करजण है, जिथेड़ी है, बेमार है, ऐसे 17 गांव हैं। वहाँ से भी सादात आए हुए हैं और पेटला से भी आए हुए हैं। लेकिन ये हुआ कि रास्ते में ही हमारी कुछ लग्जरी को और उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है और डिटेन कर उनको ले जाकर वापस घर छोड़ दिया गया है। तो जो बाकी की जो तादाद यहाँ पर पहुँचने वाली थी, करीब 1500 लोग, वो पहुँच नहीं पाए। तो गाँव के और जो पर्सनल व्हीकल से जो आ गए थे बाहर से सादात लोग, वो लोग साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हमारी बात मांग नहीं पहुंची तो ये आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे और बाकी के लोगों को भी जोड़ेंगे। चलिए, तो ये थे नकीब जी जिनसे हमने बात की कि इस पिराना विवाद का आखिरकार 1 साल से जो चल रहा है मामला वो क्या था। तो पूरी तरह से समझा गया कि अब जो है जाकर नामकरण किया गया है और ये लोग उस नामकरण को सह नहीं सकते कि हमारे जो है पीर औलियाओं के नाम को चेंज करके, हमारे वंशों के जो नाम को चेंज करके यहाँ पर जो है कुछ दूसरा नाम दिया जाए। हालांकि इस पिराना को लोगों ने पहचाना है तो इमाम साहब बाबा के नाम से पहचाना है, और अब जाके यहाँ पर जो है उनका नामकरण है, या कहीं ना कहीं इनको चुभ रहा है। तो अब आने वाले समय में इनसे ये भी कहा जा रहा है कि और भी लोग जुड़ेंगे इस आंदोलन में, और बड़ी तादाद में लोग जुड़ के इस आंदोलन को गांधी जी इंडिया मार्ग ले जाया जाएगा, हेल्दी प्रोटेस्ट किया जाएगा और इस एहतजाज को आगे बढ़ाया जाएगा अगर इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। तो अभी आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि कब तक जो है पिराना की सैयद परिवार की आवाम को न्याय मिलेगा।